Good morning, friends. Welcome back. Moving to our last sum as far as retirement is concerned. छोटा सा लर्निंग पॉइंट है, फटाफट खत्म करेंगे और रिटायरमेंट हमारे लिए खत्म होगा नेक्स्ट सेशन से। आखिरी पोर्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दैट इज डेथ शुरू करेंगे। ठीक है, जर्नी काफी लंबी रही है मगर होपफुली ये जर्नी काफी प्रोडक्टिव रही है। होपफुली ये जर्नी का पूरा जो क्लस्टर हमने बनाया राइट फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन to retirement and then death will all be super duper clear to everyone. Not wasting too much of time, आज के हमारे कैरेक्टर है EFG। ठीक है, आपका PDF ओपन करिए। Sum goes like this, it says EFG, a partner sharing profit and loss in 223 on 31st March 15, so that's your year ending. Their balance sheet is as under land, machine, furniture, investment, stock, debtor, bank, deferred expense. There is no goodwill, so life is good. You are told on 31st March 15, if you can understand, F retire हो जाता है। तो क्योंकि F retire हो जाता है तो अपने पास decided to carry on business, it was decided to revalue assets and liabilities। सबसे पहले goodwill लेते हैं, adjustment 6। Goodwill of the firm is valued at 560. Firm's goodwill है, proportion चाहिए, and F's share of goodwill be adjusted in the account of E and G. E and G decided to share profit and loss in 3:2. So यहाँ से sacrificing ratio is equal to old proportion minus new proportion. You got E F G. Your old ratio is 2 2 3, so that is 2 by 7, 2 by 7, 3 by 7 minus your new ratio is going to be 3:2, so 3 by 5, 0 and 2 by 5, so into 5, making denominator same, and into 7. So what I get is 2 5s are 10 and 3 7s are 21, so minus 11 by 35. 2 5s are 10, so it is 10 by 35. 3 5s are 15, 2 7s are 14, so it is 1 by 35. Somebody's sacrifice becomes somebody's gain. Who are sacrificing partner? F and G. What's their sacrificing ratio? 10:1. What's their proportion? 10 by 35, 1 by 35. You are given firm's goodwill, तो सीधा यहाँ multiply कर दो 560, 560, 560, and what I get? I'll use my calculator. I'll be safe enough over here not to take a risk. It is 5,60,000 into 11 divided by 35, that is 1,76,000. 5,60,000 divided by 35 into 10, that is 1,60,000, and this is 16,000. Who is gaining? E. Did he pay? No, so it is E's capital account debit 176. Who are sacrificing? तो F and G. E से पैसा लेना है और F और G को देना है. Hope this is absolutely clear and this is not your learning point. In E's capital 2F and G's capital 1,76,000, and in F and G it is by E's capital. F में 1,60,000 और G में 16,000. Hope things are clear, everyone. Removing this as I need some space. आगे बढ़ते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 240. अंदर देखो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख दिख रहा है. जैसे कि इट इज अप्रिशिएटेड बाय 240 तो एंट्री रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग असेट डेबिट बढ़ाना है तो और डेबिट,
कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छे को कहते हैं गेन, गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड, वेयर इट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन, इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एसेट डेबिट हमने किया और डेबिट, सो इट विल बी एडेड, ये हो गया 12,40,000 और रीवैल्यूएशन इट्स बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। आगे बढ़ते हैं। एंड मशीन भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। अंदर देखो मशीन आई थिंक 5 लाख दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, दे आर सेइंग इट इज डिप्रिशिएटेड, मशीन एसेट डेबिट कम करना है तो क्रेडिट 10% 50,000। कैसा लगा, बुरा लगा, बुरे को कहते हैं लॉस, लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, वेयर इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, इन रीवैल्यूएशन इट इज टू मशीन 50,000 and machine is your asset debit, हमने किया credit opposite side minus, I'm left out with 4,50,000। आगे बढ़ते हुए 50% on investment taken over by retiring partner at book value, investment 2 लाख दिख रहा है, उसका 50% यानी 1 lakh taken over at book value by retiring partner, so it is F's capital debit to investment, कोई लॉस बॉस हुआ नहीं तो रिवैल्यूएशन अफेक्ट होगा नहीं। इन F it is to investment 1 lakh और इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट हमने किया क्रेडिट अपोजिट साइड माइनस, आई एम लेफ्ट आउट विद 1 lakh। होप थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट, an old customer Mohit, whose account was written off as bad debts, has promised to pay 7,000 in settlement of his full debts of 10,000। प्रॉमिस किया है, पे नहीं किया, और क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस किया है एंड वो भी कौन से डेटर ने जो ऑलरेडी हमारे साथ बैड डेट्स कर चुका है, हमारा नुकसान कर चुका है, तो वी वोंट कंसीडर दिस प्रॉमिस टू बी जेन्युइन, इट्स ओनली व्हेन ही विल पे आई विल रिकॉर्ड इट। अभी क्योंकि प्रॉमिस है तो उसको सिर्फ प्रॉमिस रहने देते हैं, प्रॉमिस का कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेट इट जस्ट बी एन इंफॉर्मेशन, वी वोंट अकाउंट फॉर इट। होप दैट इज क्लियर एवरीवन। अगर उसने लिख कर दे दिया होता कि मैं पैसा दूंगा, तो इन दैट केस माय एंट्री वुड हैव बीन, अगर पैसा दे दिया होता तो इट वुड हैव बीन बैंक टू बैड डेट्स recovered, bad debts recovered, close where P&L, what's your P&L revaluation। अगर पैसा दिया होता तो, अगर नहीं दिया होता तो डेटर टू बैड डेट्स recovered 7,000 ये एंट्री हम पास करते, मगर क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस दिया है तो इनमें से ना ही पैसा आया, ना ही वी आर श्योर अबाउट दिस प्रॉमिस, सो ना ही डेटर बना, वी आर नॉट गोइंग विद एनी ऑफ दिस अकाउंट, सो लीव इट। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड ऑन डेटर इज 5%। डेटर आपका 4 लाख, इसका 5% बीडीआर, तो एंट्री बनेगा पीएनएल टू बीडीआर, पीएनएल के बदले आ जाएगा रिवैल्यूएशन 20,000 इन रिवैल्यूएशन to BDR and BDR over here minus from debtor 20,000, I am left out with 3,80,000। इतना याद रखो, अगर डेटर ने हमें लिख कर दे दिया होता कि मैं आपको 7,000 दूंगा, तो मैं एंट्री वुड हैव बीन डेटर टू रिवैल्यूएशन, डेटर ये 4 लाख में 7,000 और ऐड होता तो 4 लाख 7,000 हो जाता, फिर उसका 5% हमने गिना होता, which would have been 20,350। अगर होता तो, नहीं है तो जैसे दिख रहा है वैसे। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू। अंदर देखो क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख दिख रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है, सो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट कम करना है, क्रेडिट कैसा लगा, बुरा, बुरे को कहते हैं लॉस, लॉसेस आर टू बी डेबिटेड 1 लाख।
where revaluation, in revaluation to closing stock 1 lakh and closing stock asset debit हमने किया credit opposite side minus I am left out with 7 lakh. आगे बढ़ते हैं. गुडविल हो गया. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी 32 lakhs. ये बता दिया है कि ये 32 लाख टोटल कैपिटल अकाउंट ऑफ ई एंड जी मिलाकर 32 लाख होना चाहिए. और विच विल बी इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज क्या डिसाइड किया था 3:2. मगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट होता है एंड में आएगा. अमाउंट पेबल टू एफ was settled by accepting a bills of exchange in favor of payable in his favor payable after 4 months. ये एक लौता एडजस्टमेंट है जो शायद आप पहली बार देख रहे हो इस चैप्टर में. बाकी बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट करके रिटर्न करेंगे, नई बात कोई नहीं है. 11th में पूरा चैप्टर किया है इसका. एंड में आएंगे तब बात करेंगे. अभी साइड में कर दो. एक बार देख लेते हैं. लैंड हो गया, मशीन हो गया, इन्वेस्टमेंट 50% हो गया. थर्ड वाला एडजस्टमेंट आएगा नहीं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, गुडविल हो गया, कैपिटल टोटल हो गया. ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. लेट्स गो टू स्टेप 2 बैलेंस शीट. लैंड, मशीन, फर्नीचर 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो गया, क्लोजिंग स्टॉक डेटर बैंक 80,000. Okay, there is advertisement expense, that's a fictitious asset. क्या करेंगे? ट्रांसफर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू ट्रांसफर इट क्रेडिट 1 lakh. वेयर इट इज ट्रांसफर्ड टू EFG. रेशियो थोड़ा अपना टेढ़ा है तो देखना पड़ेगा कि इट इज 1 lakh इनटू रेशियो था आपका 2/7, so that is 28,570. 28,570 and 1 lakh into 3/7, that is 42,800. 60, I'll say 0 7 plus 7 14, yeah 60. So in EFG it's 2 advertisement expense. It is 28,570, 28,570 and 42,860 and advertisement expense आमने सामने आपका हो जाएगा कैंसिल. एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ऑन है कि नहीं. यस, इट्स वेरी मच वर्किंग, नॉट अ प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. असेट साइड हो गया. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 160 है. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 44 है. उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स 4 लाख है. उसके बाद PF 76,000 है. और अगर कैपिटल की बात करें तो बाय बैलेंस इट इज 1250, 8 लाख 1050. Hope things are clear. All done. Step 1 adjustment done, step 2 balance sheet done, step 3 analysis. ये 240 है. Greater side, add the greater side, on the lighter side, find out the difference. 1,70,000 तो करीब 70,000. Credit side is greater to transfer it debit, where it is transferred to EF and to G.
it is 70,000, 20, 20 and 30. In revaluation it's to capital, and in capital it's by revaluation it's 20, 20, 30. अब जो छोटा सा अपना लर्निंग पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहले जो बाहर जा रहा है उसका टोटल कर लेते हैं, उसको सेटल कर देते हैं। यहाँ पर F बाहर जा रहा है तो 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 20,000 यानी 9,80,000, 9,80,000 माइनस 1,28,570, 128,570, that is 851,430। इसका क्या करने वाले हैं सुनना अच्छी तरह से। आपको बोला गया है कि ये जो अमाउंट है 851,430, उसका हम अमाउंट ड्यू टू एफ was settled by accepting a bill of exchange in favor payable after 4 months। हमने एक्सेप्ट, उसने बिल ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न किया, तो फॉर अस बिल गोज आउट एंड हु इज द रिसीवर एफ, सो इट इज 851,430, 851,430। तो इन F2 बिल्स पेबल आ जाएगा और बिल्स पेबल आपका जाएगा लायबिलिटी साइड 851,430। सेटलमेंट के अलग अलग तरीके, डरने का नहीं। एज फार एज E&G इज कंसर्न, छोटा सा कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना कुछ खास नहीं है। आपको बोला गया है व्हाट योर कैपिटल इज, E&G and what your capital should be is यहीं से मिलेगा, तो टोटल कर लेते हैं। इट्स 12,50,000 प्लस 20,000 माइनस 1,76,000 minus 28,570, that is 10,65,430, 10,65,430। जी की बात करते हैं तो भैया जी का जो है दैट इज 10,50,000 plus 46,000 minus 42,860, that is 10,53,140 है। जबकि न्यू adjusted capital should be 32 lakh and that too in their new ratio. What is their new ratio? 3:2. So 32 lakh into 3 divided by 5, that is 19,20,000 and 32 lakh into 2 divided by 5, that is 12,80,000. This is what their capital should be. कंपेयर करते हैं, 19,20,000 होना चाहिए मगर है 10,65,430, 854,570 कम है तो लेकर आएंगे कैश टू कैपिटल। इन कैश टू कैपिटल ऑफ E 8,54,570 and over here it's by cash 854,570। तो 854,570 आने के बाद
हमारे पास अब हो गया प्लस 12,50 प्लस 20 दैट इज 21,24,570 21,24,570 minus 1,76,000 minus 28,570 that is exactly 19,20,000 that is your figure that you wanted. यहाँ पर आ जाओ 1053 140 होना चाहिए आपका 12,80,000 कितना कम है माइनस 10,53 140 2,26,860 कम है वो भी लेकर आओ कैश टू कैपिटल इन कैश 2G's capital it is 226,860 and over here 226,860 इससे अब 226,860 प्लस 10,50,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 is equal to 13,22,860 13,22,860 minus 42,860 that is exactly 12,80,000 the figure that you wanted. As far as cash is concerned it is 8,54,570 plus 226,860 plus 80 that is 11,61,430 11,61,430 by balance 11,61,430 over here cash and bank 11,61,430 hope things are clear total कर देते keeping our fingers crossed 12,40,000 plus 4,50,000 plus 1 lakh plus 3,80,000 plus 7 lakh plus 7 lakh plus 11,61,430 that is 47,31,430 on this side यहाँ पर अगर गिने तो 32 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 44 प्लस 4 lakh प्लस 76,000 प्लस 851,430 that is 47,31,430 on both sides. Hopefully things are clear. Hopefully learning point is not a learning point. Hopefully that bills of exchange wala bills payable wala point is clear. So there we end the session and there we end retirement. From next session we are starting with death. बात वही होगी पार्टनर बाहर ही जाएगा मगर इस बार जिंदगी से बाहर जाएगा सिर्फ बिजनेस से नहीं फर्क क्या आता है कहाँ आता है वो देखेंगे अगले सेशन से फिलहाल के लिए # घर बैठे पढ़ो stay home stay safe as I always say take utmost care of your mental and physical health see you all tomorrow.